Khalid. He is an alumni of IIM Ahmedabad and he has a wonderful experience in consultancy. It is about 25 years. He is also on board of directors of Bhopal Smart City Development Corporation Limited and he's also a TEDx speaker as well and on board of governors of Academy of HRD and Bapu Gujarat Knowledge Village. We have a small session with him. Thank you so much. And thank you, Lavanya, for kind introduction and for calling us here. तो इस तरह की कॉलर में आ जाए तो फिर जब भी हो जाएगी. So happy to be here with all of you. I am the happiest when I am in the class. The best moments of my life are when I am in the class with bright minds. We have bright minds of India, all of you. And whenever there is an opportunity to speak to young people, I always grab that. So जब भी मुझे बताया कि हाँ IIM बोधगया में आया है essentially for recruitment work, मैंने कहा थोड़ा सा आज टाइम है तो पहले कैसे बात कर पाऊँ आप लोगों के साथ. So one is because I enjoy talking to young bright students. Whenever I do anything in life, I write a case about. IIM Ahmedabad में हम लोग आदत की केसेस के द्वारा पढ़ते थे. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की ज़्यादा केसेस होते थे. अब तो IIM Ahmedabad में खुद भी केसेस डेवलप करने शुरू किए. We have a lot of cases for our own experiences. So I have written cases based on my experience. And those cases, when I actually go and talk about it in the class, where it is taught at IIM Ahmedabad, one of their last cases is now picked up by Harvard Business School, which I wrote last year. So when I go and talk about that, I tell them that maybe like this situation I mean, like last time we had given loan against shares to a stock exchange listed company. क्योंकि प्रमोटर को पैसे देने कंपनी लिस्टेड थी, उनके शेयर्स के सामने उन्होंने पैसे दिए, फिर पैसे वापस लाने में बहुत दिक्कत आई उनको, सेलिंग के इश्यूज, शेयर्स बेचने बाकी का. देन वी रोट केस बेस्ड ऑन दैट. इन दैट केस whenever it's taught in any case like this, I think today also I'm going to talk about a few things to you. And most of the times I find that the person who gets the most out of the class is me. स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट मुझे तो सबसे ज़्यादा मिलता है. And that is why I'm very keen whenever there is an opportunity to talk to people like you. And my selfish interest is that I would learn something out. एक तो जब किसी से बात करते हो तो आपके खुद के आइडियाज क्लियर हो जाते हैं. And actually I do something. Things are not clear, but when I write a case, it is very clear. I would urge each one of you to also write. कैसे लिखेंगे? आपको जो भी दिल में हुआ वो कहीं लिखे, जो पढ़े वो लिखे, और कोई तरीके से लिखे. When you write, your mind becomes more clear. And when I go and talk to young minds like you, then they ask me questions. कि आपने ये किया पर ये क्यों नहीं किया? अब ये कर दे तो और अच्छा हो जाता, ऊपर से पैसे वापस आ जाते, ये कर दे तो ज्यादा पैसे मिलते. So there is a classroom luxury and richness. तो जब आप भी मैं कुछ भी बात आज करूँ, तो I would want you to question that. Question me कि भाई ये ऐसे क्यों किया? नैन परीख ये करते उसकी जगह ये करते शायद और अच्छा हो जाता. I would have done it like this. So I'm also getting people in front because I want to talk to you. तो आप लोग मुझे बताएंगे जहाँ भी है. Whenever I ask any questions, it is not a rhetoric. It is a question to you. तो आप reply करें and let it be an interactive session where you could ask questions also at the end for 5-10 minutes. But I would love if we have interactive sessions so that I don't talk all the time. आप पूछते जाएंगे, कहीं रोक लेंगे, कहीं बताएंगे, कहीं कहेंगे कि ऐसे हो सकता है. I would love that. That is my learning. That is my takeaway from this half an hour, 45 minutes that I'm going to spend with you. So that is one. And congratulations to all of you who have come to IIM बोधगया. I think 3-4 महीने हुए आप लोगों को ज्वाइन करे हुए प्रोग्राम या कभी 20 days तो फ्रेश एकदम बिल्कुल ही. अभी तो जस्ट
बोल गया कि हवा लिया आप जस्ट आए कांग्रेचुलेशन आई थिंक दिस इज ह्यूज टू गेट एडमिशन इनटू IIM इज बिग एंड आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू एंड I would share with you as to how I got admission in IIM Ahmedabad because it's a few years away, lot of years back. But जब आपसे मिलके बात करता तो मुझे लगता है जैसे कल ही हो गया था वो कि मैंने एडमिशन लिया था IIM Ahmedabad में गया था. तो हुआ था यूँ कि in the school I was a very below average student. I don't know about all of you, but मेरे तो कभी-कभी रेड लाइन आ जाती थी, फेल हो जाता था. स्कूल में ज्यादा मेरा मन भी नहीं था पढ़ने में. So I was kind of average, below average student. And my main focus was on playing, being with friends. I don't know about you, but आपका भी शायद होगा या पहले था या कहीं. So from an average student and kind of when I was 16, 17 years old, suddenly to a heart stroke, my father expired. So I was in, I think at that time 11, it was SSC, the last year of SSC, then it became 10 plus 2, and we lost him there. And then, kind of that became a turning point in my life. That's when I knew that अब कुछ करना पड़ेगा. Because जब तक father थे तब तक आसान भी था, पैसे भी थे, चल भी रहा था सब कुछ. फिर लगा कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा. Because we were 5 siblings in all, and there was no working hand. It means that we will have to fend for ourselves. And that is why when I realized कि जिंदगी में सीरियस होने का टाइम आ गया, कुछ करने का टाइम आ गया, पैसे कमाने की कितनी जरूरत है वो पता लग गया. And then somebody told me, तब IIM Ahmedabad तो मेरे ख्याल से हुए होंगे कहीं 10-15 साल, but it had already established its thing. So somebody told me कि भाई तुमको लाइफ बदलनी हो तो जिंदगी बदल जाएगी. बोले तुमको अभी तो लग रहा था कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, वहां से लेके नौकरी देने वाले आपके पीछे आएंगे. वो सिचुएशन होगी करनी होता है अहमदाबाद में चल जाए. तो वो लगा कि जैसे जादू ही चढ़ी कि छुआ है अहमदाबाद को और जिंदगी बदल जाएगी. तो वहां से शुरुआत हुई और उसके बाद जो मैंने कहा दोस्तों को कि IIM Ahmedabad की मैं सोच रहा हूँ, and then everybody started laughing. आप क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे तो हर ईयर में पास होने का भी तकलीफ है, तुम गुजराती मीडियम में हो, मैथ्स तुमको आता नहीं है, और बोले IIM Ahmedabad का पता है वहाँ तो IIT के जो ग्रेजुएट्स है उनको एडमिशन ज्यादा मिलता है और इंग्लिश तो एकदम फर्राटे से बोलनी पड़ेगी आपको, उसके बगैर नहीं करेंगे. तो आपको तो बोलना मुश्किल है, आपको इंग्लिश में ज्यादा पढ़ने में मुश्किल है, कैसे कर लोगे आप. तो वहाँ जो इम्पॉसिबल माइंडसेट है वो मिशन इम्पॉसिबल की तरह एक शुरुआत हुई कि कैसे IIM Ahmedabad के एडमिशन लिया जाए. और ये डिसीजन किया कि लेना तो है क्योंकि यही करूंगा तो जिंदगी बदलेगी और जिंदगी बदलना जरूरी है. क्योंकि मैं देख रहा था कि पैसे नहीं होने से क्या तकलीफ है. मैं देख रहा था एक ऑर्डिनरी फैमिली विदाउट फादर को क्या दिक्कत हो रही है. तो वो सोच के एक बार नक्की कर दिया कि जरूर IIM Ahmedabad में जाना है. और वहाँ मेरी फिर 4 साल की कॉमर्स की जर्नी शुरू हुई. आई डोंट नो आप में से कितने यहाँ कॉमर्स ग्रेजुएट है, और जो कॉमर्स ग्रेजुएट है मेरे ख्याल कॉमर्स में हम लोग तो क्या साधारण से लोग आते थे कॉमर्स में. मतलब पहले तो जो अच्छे थे वो तो या तो मेडिकल में चले जाएंगे या कोई और भी थोड़ा सा बचा तो इंजीनियरिंग में चला जाएगा. उसके बाद बचा तो फिर BSc करेगा, क्योंकि साइंस तो हमारे टाइम पे आई डोंट नो अभी भी हो गया शायद, वो थोड़ा सा ऊपर माना जाता था. तो एक जरा आर्ट्स के ऊपर हम थोड़े गिने जाते थे, बट अदरवाइज यू आर जस्ट आफ्टर डॉक्टर, आफ्टर इंजीनियर, आफ्टर BSc बीकॉम का नंबर आता है. उसमें 4 साल की जर्नी में मैंने ये नक्की किया कि मैं कॉमर्स को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा IIM Ahmedabad की एडमिशन टेस्ट के लिए तैयारी करूंगा. और वो शुरू की. तब तो इतने क्लासेस भी नहीं थे. नाउ वी हैव लॉट ऑफ क्लासेस प्रिपेयरिंग फॉर GATE एग्जाम. दैट टाइम देयर वाज नॉट, आई डोंट थिंक देयर वाज इवन एनी कोचिंग क्लासेस. फिर अहमदाबाद से स्टूडेंट भी बहुत कम थे. आई थिंक इन एवरी बैच ऑफ 180 स्टूडेंट्स एट दैट टाइम IIM में अहमदाबाद में से बड़ा मुश्किल से कभी एक आएगा कभी नहीं आएगा. तो IIM में अहमदाबाद में तो
वहाँ से आए अहमदाबाद की शुरुआत हुई और अहमदाबाद में होने से एक बड़ा डिसएडवांटेज था कि अहमदाबाद से तो किसी को ज़्यादा एडमिशन मिलता ही नहीं, फिर गुजराती मीडियम वाले को नहीं मिलता है, फिर नॉन इंजीनियर को नहीं मिलता है। 80-90% तो IIT के ग्रेजुएट, साधारण इंजीनियर को नहीं मिलता। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर हम लोग को घड़ी लेके मैं बैठता था और कुछ जीमेट की किताब आती थी वो करने लगा। और पहले टाइम तो करने लगा तो ना मैथ में थोड़ा सा समझ में आए, ना इंग्लिश में समझ में आए, तो एक तो पहले कर ही नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे करके कि भाई ये कर पाता हूँ पर टाइम पे नहीं कर पाता हूँ, फिर घड़ी देख के कि भाई ये बहुत कम कर पाता हूँ, बहुत टाइम लग जाता है। फिर इंग्लिश का सीखना, फिर कभी कभी कुछ ही चीज को तो 7th स्टैंडर्ड से शुरू करना पड़ता था, क्योंकि स्कूल में तो ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं था, इंटरेस्ट भी कम था। तो वो किसी का 7th स्टैंडर्ड, किसी का 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, वो सब फंडामेंटल्स हमने पक्के किए। और वहाँ से एक मिशन इम्पॉसिबल की शुरुआत हुई। एंड आई एम श्योर कि आप सबने भी कोई मिशन इम्पॉसिबल की शुरुआत की होगी जब आपने सोचा होगा कि एक IIM में एडमिशन लेना है। अब IIM बहुत हुए हैं, पर एवरी IIM स्टिल हैज अ बिल्डिंग प्रेस्टीज। एंड आई फील दैट देयर वुड बी अ स्टोरी ऑफ ईच वन ऑफ यू कि कैसे आप लोगों ने एडमिशन की तैयारी की, कैसे एडमिशन लिया, कैसे आप पहुंचे। एंड आई वुड टॉक अबाउट देम एज टू हाउ एन इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। एंड मेरे केस में कैसा हुआ, आप सबके केस में कैसा हुआ। पर जो मैं बात अभी बताने जा रहा हूँ वो कि जो मैंने किया वो तो मैं बता सकता हूँ। मैंने घड़ी रखी, मैंने इतनी सारी टेस्ट दी, मैंने मॉक टेस्ट दी थी, मैंने अपने आप को कहीं तैयार किया। पर लेकिन जो मैं नहीं कह सकता हूँ और जो मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज़ है वो ये कि मैं क्या करता हूँ इससे ज़्यादा मैं क्या सोचता हूँ इससे फर्क है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट थॉट्स, जस्ट टू हाउ माइंडसेट लेवल। और हम लोग हमेशा फोकस ये देते हैं कि आपने क्या किया, वहाँ से फोकस कैसे शुरू करें कि हम क्या सोचते हैं और वो सोच कैसे बदले, एंड वो सोच बदलने से क्या बदलती है जिंदगी, उसके बारे में बात करते हैं। क्यों बहुत कम लोग सफल होते हैं। Success is being 1%. In IIM Ahmedabad at that time, I think even now out of 1,000 one student gets it. Maybe 500 में से एक कभी-कभी एडमिशन पाता है। In real life also few people get rich and successful. तो वो क्यों होता है? मैंने सफलता के बारे में कहीं आर्टिकल लिखे हैं, 3 किताबें लिखी हैं। I write a management column in a newspaper in Ahmedabad every week. And the topic is often success. तो सक्सेस के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि ये सफलता क्यों सबको नहीं मिल सकती, और कोई ऐसी चीज आ जाए जादू खड़ी जैसे सब सफल हो जाए तो क्यों नहीं। तो ये जब सोचता हूँ कि ऐसे सबको सफलता प्राप्त हो, इसके लिए करना हो क्या करना चाहिए। सो आई थिंक दैट वन मेजर थिंग दैट वी नीड टू शिफ्ट इन आवर माइंड इज द वे वी थिंक। And I think the least we are present is about what we think. हम लोगों को आज क्या खाया वो पता हो सकता है, आज क्या पहना है वो पता हो सकता है, पर आप क्या what क्या करनी है वो मुझे बताए। कि आप मुझे बताए इस वीक के आपके मेन थॉट्स क्या थे। And we keep thinking those thoughts repeatedly. And I have found that most of the times our thoughts have a negative bias. नेगेटिव सोच पहले आती है। क्यों? जैसे इफ माई डॉटर कम्स लेट, उसका रेगुलर टाइम 6 बजे है, यदि वो 8 बजे तक नहीं आए तो पहला थॉट क्या आएगा? वो पॉजिटिव हो सकता है, या वो आएगा कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं कोई भाग तो नहीं गई, कहीं किसी के साथ, तो क्या क्या 50 चीज ख्याल में आती है, पर पॉजिटिव नहीं आएगा। पहले नेगेटिव आ जाएगा इमीडिएटली। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं आया, कोई नहीं बता रहा है, बोले नेगेटिव है इसलिए नहीं बता रहा होगा। तो वो नेगेटिव बायस है हमारा, वो क्यों है, एंड देन हाउ कैन वी चेंज इट। आई थिंक इसके बारे में थोड़ी सी बात करते थे। पहले वो रियलाइज करना कि हमारे सामने एक नेगेटिव बायस है। पहले कुछ सोच आई ये तो नेगेटिव आएगी, ये नहीं हो सकता मेरे से। आपको जैसे आए अहमदाबाद में एडमिशन लेना है, पहले से आएगा या तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। मैं तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, मेरा बाकी का कार्डियो भी हो जाता है, मेरा स्ट्रेचिंग और योगा भी हो जाता है, क्योंकि मैं घर का मतलब का सब साफ करता हूँ। तो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज यूज्ड एंड देयरफॉर आई एम फीलिंग गुड। एंड इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ पेइंग अ जिम आई
am getting paid for doing my exercise. वो पॉजिटिव थॉट करते और उनके साथ ये भी सोचते थे पॉजिटिवली कि तो ये मैं मोटर में अभी काम कर रहा हूँ पर अपनी जिंदगी काम नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना उसमें से सीख लूंगा, कल अपनी मोटर चालू करूंगा, तो मुझे तो अप्रेंटिस के तौर पे सीख भी रहा हूँ, पैसे भी मिल रहे हैं और कल को मैं अपनी मोटर बोलूंगा। 50% ऑफ पीपल में रिमेनिंग 50% में सेम, तो उनको तो कुछ करना नहीं था, दे वर हैविंग द सेम नेगेटिव थॉट्स डूइंग द सेम वर्क, पर क्या अरे बोले ये तो इतना हमारा काम खराब है, ये साफ करना पड़ता है, ये लोग देखो आगे अपना गंदा करके चले जाते हैं, ऊपर से इंडियन को और गंदा करते हैं जो भी आते हैं तो अमेरिका में, उनको तो सूझबूझ नहीं है कितना गंदा खुद करना चाहिए, और ये सेविंग हम लोगों को पैसे कम मिलता है और ऐसा काम तो मतलब दिस इज द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट वर्क दैट आई वांट टू डू, कल को दो मुझे लॉटरी मिल जाए मैं छोड़ दूंगी। तो ये 50% जो है वो बिल्कुल अपने आप को सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और 50% का देखो तो एग्जैक्टली आफ्टर 3 months they surveyed both of them in their health, and 50% who were having positive thoughts doing the same thing were having better health. They didn't have to take holidays, their heart was good, their back exercise were fine, and बाकी के 50% continue। So आप जो भी करते हो वही करते रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट विचार मत दो और क्या आप बदल पाते हो। So I am saying that is the power of it, and I would want you to now change your thoughts, which means that each one of you, and this is a ये थोड़ी सूक्ष्म चीज है, क्योंकि क्या कर रहे हो वो बहुत सॉलिड है, बाद में आ जाता है, समझ में आता है क्या करते हो, पर आपके थॉट्स क्या है वो पकड़ना एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब 50 बहुत करते हैं और थॉट्स पे काबू होना बिल्कुल। आई एम सेइंग दैट हाउ कैन वी स्टार्ट ऑन दिस पाथ। एक तो ये पता लग गया कि थॉट से बड़ा हमारा जीवन बदल सकता है, वी कैन बी मोर सक्सेसफुल इफ आवर थॉट्स आर पॉजिटिव, our life would be good, we would be more healthy if our thoughts are positive. Now how do we change it? One is, as I told, consume, you become what you consume, so consume news which are positive, in media, social media, with friends. You can always find friends who are negative, जो आपको हमेशा ही परेशान करते रहते हैं, उनको रखने की जरूरत नहीं है कोई लाइफ। You have people who are supportive, who would tell you, अरे यार कर लो, अरे हो जाएगा, अरे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो यार, कोई मुश्किल नहीं। Have those kind of people who would encourage. Second, be present to yourself. There is something called mindfulness. Mindfulness is when you are present to what is going on here. And most of the time हम लोग घूमते रहते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या माइंड में चल रहा है। How to be mindful? Mindfulness की पहला स्टेप ये है कि आप एक साथ एक चीज करें। Multitasking is the major enemy of mindfulness, क्योंकि आप क्या खा भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, साथ में मोबाइल पे भी फोन बात कर रहे हैं, उस चीज में माइंडफुलनेस नहीं आती। पहले तो एक चीज एक साथ करिए, which is the way meditative, which is the way mindful, which means that you are eating, just eat and fully enjoy what you are eating. आप जो खा रहे हैं वो पूरा खाइए, साथ में फोन मत करिए, साथ में मोबाइल पे कुछ इंस्टाग्राम मत देखिए, just do one thing at a time. And then second, have some regular positive thoughts every day. हर रोज आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि अंडा खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अंडा में प्रोटीन है, बाकी में नहीं है, ये काट लेना चाहिए। I am saying what are the most positive 10 thoughts that you would do every day, no matter what. ये आपका टिप्स है, जैसे आपको एक अंडा खाना है इसकी तरह कि आपको 10 पॉजिटिव थॉट करने हैं। People say that for every one negative thought, you would need 3 positive. Because वो negative का बैलेंस इतना चल रहा है, so how would you decide on your own 10 positive thoughts every day, which comes from heart? Not because I am saying it, not because you are saying. What are you grateful for? So जैसे are you really grateful for admission at IIM? Then you would say that I am grateful for IIM both there. Would you be grateful for some good friends that you have, some kind of success that you achieved today, something that you learned? What is it that you are really positive and grateful for? And have those 10 thoughts in your mind. And those thoughts would then become things. And those thoughts would then turn into reality.
And that would start changing the wiring that we have here, which is actually biased to something which is more positive. And that, I think, small step I would wish that you take today. And then have a support group which would talk to you about your thoughts. And I do it in my family on every birthday. You thoughts can. And then they will have to think. And then what are the positive thoughts that you can have? Because the moment you don't have positive thoughts, negative thoughts तो हो जाएंगे. आपको लॉन उगानी पड़ेगी, पर वो जो बाकी का इधर-उधर का जो है, वो तो अपने आप ग्रो कर लेगा. तो आपको जो पॉजिटिव थॉट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं? What is it that you want from life? How can you become more grateful? Those are the ways that you move on the path of success. And that, I think, is what could make an ordinary boy like me into an IMA graduate. It also made me earn well. It also made me more powerful. वो सब की शुरुआत बाहरी दुनिया तो वो देखती मैं क्या करता था. I want to share with you what I was thinking, and I want to then know as to what are you doing, and उसमें कैसे बदलाव हो, and how do we kind of make positive lives here. How each one of you becomes more successful. How each one of you are more positive ones. With that, I and thank you so much for your now open to some question answer if we have before he takes over and starts talking about the company for which we are recruiting people. So any thoughts and guidance? Let's throw it about he says what is looking at life optimistically and practically. Realistic. This is practical और realistic बोलो तो वो तो optimistic थोड़ी हो सकता है. या तो आप optimistic बनो या realistic बनो. वही कहना है. तो बोलो क्या कह रहे हैं आप लोग? आपने तो सुना जो मैंने कहा. And then I would share, but before that anybody would like to respond to that? Isn't it optimist या practical? क्या बनना चाहिए? हाँ? Exactly. या तो आप रियलिटी को अपने आप कहते हैं कि जो बाहर की दुनिया है उससे आप अपने थॉट करो या अपनी थॉट से दुनिया बनाओ. What would you like to do? दृष्टि से दृष्टि या सृष्टि के हिसाब से दृष्टि क्या करना चाहेंगे? तो ऐसे कि आपको यदि सफलता चाहिए, आपको यदि जॉब करना है, तो आपको पहले मन में वो बनाना पड़ेगा. और जब बाहर नहीं है तब बनाना पड़ेगा. और फिर जो बना रहे हो वो कहीं बाहर पॉसिबल होगा. तो इसीलिए practical, was it practical for me to get admission at IIM Ahmedabad? ना कोई statistical evidence नहीं था. इंडिया ने हम कभी वर्ल्ड कप जीता हुआ अपनी बाहर चांस. मेरे ख्याल लास्ट कितने ओवर में हम लोगों ने बदलाव हुआ? 5 ओवर. 5 ओवर के पहले कोई था प्रैक्टिकल क्या? ना प्रैक्टिकल होता तो हो नहीं पाता. पर प्रैक्टिकल नहीं है हम लोग. बट यहाँ करना है. तो प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक व्हाट वुड यू लाइक टू बी? If practical is negative, then be more optimistic and bring the reality, which would be your optimistic. That answer? Anything else? Yes. How to give courage to something if in the past we have been in that? अरे बिल्कुल हाँ. इससे एक बार तो मैं फेल हो गया और अब करेज कैसे आया करने. तो इसके लिए आई थिंक बहुत सारी बातें हैं. बट आई वुड टेल यू जैकमा का नाम सुना है आपने? जैकमा वॉज द रिचेस्ट चाइनीज पर्सन. वो उसकी कहानी पता है आपको? तो कहानी है जैकमा को जो भी प्लेसमेंट और इंटरव्यू में मेरे ख्याल मैकडोनल्ड्स में भी कितनी बार मना हुआ थी नौकरी. उसके साथ 20 लड़के थे, उसमें से 19 को नौकरी मिली, एक ही को नहीं मिली. वो जैकमा है ना. अमिताभ बच्चन को क्या हुआ था? अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो की जो कोलकाता में उन्होंने कोशिश की नौकरी की. उन्होंने एक चीज कही कि तुम्हें इसलिए नौकरी नहीं दे सकते बोले तुम्हारी आवाज में दम नहीं. तुम्हारी आवाज में दम नहीं, तुमको रेडियो पे थोड़ी मिल सकती नौकरी. एंड क्या बना फिर वो फाइनली जो बने अमिताभ बच्चन वो किस चीज से बने? वो अपनी आवाज के बल से बने. तो आई एम सेइंग दैट वो जब असफलता मिलती है वो असफलता में से निकाल देना है.
इट इज ए सफलता। या इम्पॉसिबल में से आई एम पॉसिबल जो बनाना है वो कैसे बनाओगे? असफल हुए कितने लोग, और जैकमा की कहानी आप पढ़िएगा, अमिताभ जी की कहानी पढ़िएगा, यू वुड फाइंड आउट दैट ऑल ऑफ अस वुड गो थ्रू सो मेनी फेलियर्स, वुड यू अलाउ दैट टू गो ओवर यू? तो हमेशा जो असफल होती है आदमी, इंसान होता है, वो कैसे फिर और डबल जोश से, और वो डबल जोश करने के लिए क्या जरूरी है? एक तो पहले अपने थॉट, यार मैं तो लायक हूँ, यार मैं तो लायक हूँ, यार मैं तो ऑल इंडिया रेडियो के नहीं बोले, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में धमाका बचा दूंगा, और मेरी आवाज जो तुम बात कर रहे हो वो आवाज को स्ट्रेंथ बनाऊंगा। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है बोला, वो अपनी सेल्फ बिलीफ इतनी बुलंद कर रहे हो, क्योंकि हर रोज आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट दे रहे हो, यार कि मैं तो हूँ दमदार। वो नहीं देख पाया, ठीक है, उसकी मर्जी। जैकमा को नौकरी नहीं मिली, बोले कोई बात नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, नौकरी मुझे नहीं मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ डू यू कन्वर्ट एवरी फेलियर इनटू योर फर्म रिजॉल्व? एंड उसके लिए एक तो मन के विचार और दूसरे आसपास के लोग। आसपास के लोग जैसे ही आप करने ऐसा हो गया, फेल हो गया, अरे अमिताभ बच्चन बोले यार तुम्हारी आवाज पहले ही दम नहीं था, तुम कुछ भी नहीं कर पाओ, तुम नौकरी भी बड़ी मुश्किल से तुम मिलेगी। जैकमा को आई एम सेइंग सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु वुड से यार कर लोगे तुम, क्या मुश्किल है, अरे एक बार नहीं किया कोई बात नहीं, एक फेलियर से क्या होता है, 10 फेलियर के बाद भी हम लोग तो आगे बढ़ जाएंगे और फिर भी कर लेंगे। और ऐसे एग्जाम्पल्स है कितने जिन्होंने 10 फेलियर के बाद भी कुछ पा लिया। घर वाले ओके, आई एम सेइंग दैट घर वाले डिस्करेज कर रहे हो, स्पेशली यू कैन फायर योर फ्रेंड, बट टू फायर योर रिलेटिव इज डिफिकल्ट। कि भाई माँ ही देखिए, एक बच्चे की जिंदगी में सबसे नेगेटिव चीजें जो 5-6 साल का होता है तब तक मोस्ट इनोसेंटली करती है माँ, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये करना है, नहीं करना है। तो आई एम सेइंग दैट एनीबडी हु इज नेगेटिव अराउंड यू, एक तो आपके पास यदि पॉसिबल है, जैसे वो चाचा है, चाचा के भाई है, तो आप कम संबंध कर सकते हो उनके साथ, क्योंकि उनके साथ इतना नहीं है, पर माँ है, भाई है, फादर है, तो आपको जितना वो कर रहे हैं इतना अपने आप के रिजॉल्व को मजबूत कर रहे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे, और उनको भी आपको ये ऐसी चीजें कोई बतानी, कोई ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो, उनको कोई टेड टॉक पसंद हो, उनको कोई ऐसी फिल्म बताइए। कितनी फिल्में ऐसी होती है जो अभी के स्पोर्ट्स की फिल्म की मैंने तो 3-4 फिल्में देखी, एक चंदू चैंपियन देखी, अरे तो क्या फिल्म दिखाएंगे ना उनको, जो आसपास है उनको तो कैसे सुधारेंगे, और उसको बोलिए उनके साथ चंदू चैंपियन देखिए, बोले देखिए क्या हो। फिर एक और भी थी क्या, वो जो ब्लाइंड पर्सन, इतनी फिल्में, इतनी इंस्पिरेशनल चीजें अवेलेबल है मीडिया में। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू पिक एंड चूज, बट आई एम सेइंग यदि हमारे जैसे वाइफ भी नेगेटिव है तो वाइफ को ये दिखाना पड़ेगा कि यार देख तो सही है चंदू चैंपियन, हम साथ में मिलकर देखते हैं, फिर थोड़ा डिस्कस करो चाय पे, यार क्या लग रहा तुम्हें, कैसे करना चाहिए। देखो चंदू चैंपियन को या किसको टीचर मिल गई थी, या श्रीकांत को टीचर मिल गई थी, तो टीचर ने उसको पढ़ाया, टीचर ने उसको सब किया। आप यदि अपने रिलेटिव नहीं है तो जो ऐसे आपके आसपास के लोग हैं उनको रिलेटिव बना दीजिए। वो टीचर अनमोल माँ थी उसकी, शी वॉज हेल्पिंग हिम मोर देन एनीबडी एल्स। सगे बाप ने नहीं किया, वो उन्होंने किया। आई एम सेइंग दैट यू फाइंड आउट पीपल, रिलेटिव्स हो, नजदीक के हो, बहुत अच्छा, नहीं हो तो जो भी हो, देखो तो सफल होना है, ये नहीं चलेगा तो वो कर लेंगे, पर सफलता में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो मैं जाना चाहता हूँ उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वो रिजॉल्व के साथ आप जाएंगे तो सोल्यूशन अपने आप मिलते हैं। Yes. So if we have internalized that very same doubt, how can we then get that resolved when that essentially was with your self-doubt? मैं डाउट में पड़ गया, आपने क्या पूछा, दोबारा पूछा। सर अगर वही डाउट जो आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से किया है, आप इंटरनलाइज कर चुके, आप कहीं ना कहीं अंदर से वो मान चुके हैं कि हाँ मैं उस पर नहीं हूँ, तो फिर वो रिजॉल्व कैसे लाए जब वो अंदर ही लड़ाई के जैसा हो गया? अंदर ही लड़ाई के हो गया तो अब लड़ाई में ही जीतना है आपको, क्योंकि हर सक्सेस एक लड़ाई है। और आप तो कितनी लड़ाइयाँ जीतते हैं हर रोज यार। आपको एक तो मतलब दोस्तों के साथ खेलना भी होता है, फिर आपको अपने लेसन भी करने होते हैं, आपको पढ़ाई भी करनी होती है, फिर दोस्तों के साथ भी संबंध रखने होते हैं। तो कितनी लड़ाइयाँ हम लोग करते हैं हर रोज, कितनी लड़ाइयाँ अपने आप में होती है कि यार ये मैं नहीं खेल पाऊंगा, ये खेल पाऊंगा, कैसे उसको जीतते हैं। ऐसे ही इसको जीतता है। पहले तो आपने रियलाइज कर दिया कि भैया अंदर एक लड़ाई चल रही है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, फिर हर रोज पॉजिटिव 10 थॉट लगाएंगे, कल 20 लगाएंगे। दैट इज हाउ एटलीस्ट आई हैव डन इन माय लाइफ। तो पहले एटलीस्ट मुझे कोई भी एक चीज आती है
पॉजिटिव थॉट आते हैं, बिकॉज एवरी डे आई फोर्स दैट ऑन माई सेल्फ, एवरी डे। भाई आज थॉट नहीं करे वो नहीं चलेगा, ब्रेकफास्ट नहीं करेगा तो चलेगा, पर थॉट तो मुझे 10 डालनी ही है। देन इट वुड बिकम अ रिफ्लेक्स एक्शन फॉर यू, इट वुड गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें वक्त लगेगा आपको, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है। देन ऑटोमेटिकली यू वुड थिंक ऑफ पॉजिटिव कि भाई कोई देर से आया तो वो कहीं और जगह पे काम पे गया होगा, बाकी का होगा, जो भी होगा वो, मैं कहीं फेल होगा तो आगे सफलता के लिए मैं फेल हुआ हूँ, वरना फेल नहीं हुआ हूँ, है ना। तो हर जो चीज आपके हिसाब से नहीं चलती है वो आपको 10 गुना कहीं ना कहीं फायदा करती है। अमिताभ बच्चन को यदि उन्होंने मना नहीं करता, जैक मा को वो नौकरी दे देता, तो वो आज मैकडोनाल्ड में अपने को बर्गर खिलाता होगा, है ना। वो करोड़ों रुपए का एम्पायर वो नहीं बना पाता। तो वो हर निष्फलता जो है, मैं अपनी ऊपर से, मेरी नौकरी जो लास्ट थी और मैंने कंसल्टेंसी इसलिए शुरू की कि नौकरी में जो मुझे ऐसा बॉस मिल गया जो मुझे हर रोज परेशान करता है, हर रोज पूछेगा, हर रोज मारेगा, हर रोज परेशान करेगा, उसके कारण मैंने छोड़ा। तो अब मैं तो उसको हमेशा ही धन्यवाद अदा करता हूँ कि तुम नहीं होते तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। कोई नौकरी मिलती तो मैं छोड़ता ही नहीं। सो वी ऑल नीड टू बी पुश्ड एंड गोडेड। एंड एक मूर्ति बनाने के लिए हमको थोड़ा सा कहीं तराशना पड़ता है, वो तराशने वाला कोई भी हो, हम तो उसके आभारी रहेंगे। अनलेस वी कर्स देन वी क्रिएट नेगेटिविटी फॉर बोथ, है ना। तो वो पॉजिटिविटी से लेके चलना है। तो यस, हाँ, लास्ट क्वेश्चन। बोलो, उनका कहना है कि प्लान ए और बी दोनों रखना चाहिए या सिर्फ प्लान ए रखना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर, है ना, आप कैसे हैं। एक तो ये है कि कभी कभी किसी को प्लान बी हो तो प्लान ए में चित्र ही नहीं लगता है, क्योंकि वो 100% अपने आप को झोंकता ही नहीं है प्लान में। तो यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति हो तो आप प्लान बी करिए ही मत, आपको तो प्लान ए। और प्लान बी बनाने में आपको कौन सी टाइम लग जाने वाला है। यदि प्लान ए नहीं चला तो बैठ जाना, उस दिन बना लेना प्लान बी। प्लान बी में क्या 10 मिनट और ज्यादा लगेंगे, 1 घंटा और ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए प्लान बी में ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्लान ए में लग जाइए, रख जाइए। और यदि नहीं बना तो प्लान बी आज की जगह कल बना लें। प्लान बी तो बना ही सकते हो ना, ये नहीं है कि आज नहीं बनाया तो बना ही नहीं पाओगे। तो फिर प्लान बी, जब भी प्लान बी फेल हो जाए तब करना। प्लान ए में तो अभी 110% डालो, क्योंकि प्लान बी और ए में फिर आपका मन ऐसे